Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is Unit 4. Unit 4, where we will discuss about plant physiology. There are so many chapters in plant physiology. So some portions of plant physiology has eliminated from your course. It is chapter 11, transport in plants, then mineral nutrition, next chapter mineral nutrition, then plant growth. There are 3 chapters are totally eliminated from your course. Now remaining chapter is photosynthesis and respirations, which you have read very in detail, and we have taken some important points in these 2 chapters. So today we will start chapter 13, photosynthesis in higher plants. Photosynthesis in higher plants में we will read introductory part of the photosynthesis. What do we know? Second, early experiments. Third, where does photosynthesis takes place? Fourth, how many pigments are involved in photosynthesis? What is the light reaction? What is electron transport system? What is the ATP and NADP used? Where does ATP and NADPH used? The C4 pathway, then photo respirations, next factors affecting photosynthesis. These are some points which we include in our explanations. So first, introductory part of photosynthesis in higher plants. In all animal, including any human being, depends on plants for their food. क्लियर? हम सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. वी वंडर्ड फ्रॉम वेयर फूड प्लांट्स गेट्स दिस फूड. अब ये तो हमने कभी सोचे नहीं कि प्लांट्स ये फूड कहाँ से ला रहे हैं. ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक अ rather synthesize the food they need, and all other organisms depends on them for their need. प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में ऐसी कौन सी सिंथेसिस हो रही है जिससे वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड कर रहा है. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फोटोकेमिकल प्रोसेस. एक प्लांट्स में फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसमें वो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा है. प्लांट्स किसको यूज़ कर रहा है? लाइट एनर्जी को. ठीक है. और लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो फोटोसिंथेसिस एक कन्वर्सेशन है. ठीक है. एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, लाइट एनर्जी बेसिकली. ठीक है. ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. इसलिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनडायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सनलाइट प्लांट्स लेते हैं, सनलाइट को यूज़ करके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी फूड नीड्स को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो दैट्स अ रीज़न photosynthesis is important due to 2 reasons. First, it is primary source of all food. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. प्लांट्स इज अ ओनली living organisms that has capable to convert light energy into chemical energy. Plants एक ऐसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है. ठीक है. तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं तो इनडायरेक्टली वी आर डिपेंड्स ऑन सनलाइट. ठीक है. सेकेंडली, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है. that is oxygen, and oxygen is important for breathing system for all living organisms. breathing के लिए जो गैस रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. जिसको भी हम लोग रीड करेंगे कि कितने तरीके के रेस्पिरेशंस होते हैं. रेस्पिरेशन चैप्टर में वी विल डिस्कस इन डिटेल. In this chapter, we will discuss only about photosynthesis. So, photosynthesis को कैसे आप define कर सकते हो? It is a process which is present in light, sunlight, and photosynthesis machinery and the various components. Photosynthesis machine and the various
reactions that transform light energy into chemical energy. लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज photosynthesis. The process of photosynthesis is the transformation of photonic energy, light और radiating energy. photonic energy कौन सी होती है? light और radiating energy into chemical energy by the green parts of the plant is called as photosynthesis. The simple equation photosynthesis का 6CO2 क्या हो जाएगा? 6CO2. 6 तो हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए लिया है. यदि हम 6 नहीं भी लिखते हैं तो CO2 प्लस H2O इक्वल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है. अब ये इसको केमिकली आपको बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है. यदि हम इसको ऐसे करते हैं तो ये फिर हमारा बैलेंस हो जाता है. मीन्स जितने कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टेंट्स में है उतने ही प्रोडक्ट्स में है. ये केमिकल रिएक्शन है. दिस वन इज रिएक्टेंट्स और दिस वन इज प्रोडक्ट. क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक कॉमन इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन कैसे प्रूव हुआ है दैट्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर, ठीक है. तो व्हाट डू वी नो? अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या रीड किया है? We already know about photosynthesis. Some simple experiment we have done in earlier classes have shown the chlorophyll, green pigments of the leaf. अब इसमें एक important point आया है chlorophyll. ये क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट्स है. जब प्लांट्स आपने सेल के बारे में स्टडी किया था तब ये टर्म्स को बहुत यूज़ किया है. क्लोरोफिल, इट इज़ ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द सेल और ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द लीव्स. It takes photosynthesis in presence of light and carbon dioxide and complete photosynthesis and evolve oxygen gas. We have already carried out the experiment to look for starch formation in two leaves. एक variegated leaves लिया, ठीक है. variegated leaves किस leaves को कहते हैं? जो partially green होती है और किसी किसी पार्ट पे ग्रीन नहीं होती है, ठीक है. उसको पार्शियली कवर्ड कर दिया ब्लैक पेपर से और एक्सपोज किया लाइट पर. जब उस लीव्स की टेस्टिंग की स्टार्च के लिए तो जो क्लियर हुआ कि जो उसका कवर्ड पोर्शन था, ठीक है ना, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर ऑन द ग्रीन पार्ट्स. जो वेरीगेटेड लीव्स का जो ग्रीन पार्ट्स था सिर्फ वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस हुआ. जो ग्रीन पार्ट्स नहीं था वहाँ पे स्टार्च का टेस्ट नहीं आया. क्लियर? तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि वेरीगेटेड लीव्स में पूरी जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है. और ग्रीन पार्ट्स में क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल इसका पिगमेंट्स है. क्या है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल. क्लियर? आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव कैरिड आउट इन अ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. अब इसके एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी है, इसमें आप लोगों ने रीड किया हुआ है. इसमें हाफ लीफ जो है वो उसमें कॉर्क के अंदर है और हाफ लीफ जो है कॉर्क के बाहर है. और कॉर्क के अंदर जो कॉर्क के अंदर है बॉटल पर उसमें KOH है. क्या है? KOH. KOH का नेचर होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो बॉटल के अंदर का जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा पहले से वो सब उसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है. अब उसको लाइट तो मिल रही है, ग्रीन पार्ट्स भी मिल रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही. तो जो लीव्स के कॉर्क के अंदर का जो पार्ट है उसमें आपको स्टार्च टेस्ट नहीं शो होगा. स्टार्च टेस्ट जो कॉर्क के ऊपर का लीव्स का पार्ट है उसमें, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है और ग्रीन पिगमेंट्स भी है. तो ये दो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि लाइट भी इम्पोर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है. पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट्स. जोसेफ प्रीस्टले 1733 टू 1804 इनके बीच में इनके परफॉर्म्ड हुए हैं. बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है. और इन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट्स का क्या रोल है, ठीक है. ग्रीन पार्ट्स का सबसे पहले प्रीस्टले ने ही ये रिकॉल किया कि ऑक्सीजन जो है वो
निकलती है, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने पिछला एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक सी सेक्शन, एक ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। इसमें बेसिकली एक में कैंडल जल रही है, तो एक जार है, जार के अंदर क्या रखा हुआ है, एक माउस है, ठीक है, और एक कैंडल रख दी। तो कैंडल ऑन कर दी, कैंडल बर्न हो रही है और जितने जार के अंदर के ऑक्सीजन है उसको वो पूरी तरीके से यूज़ कर लेती है। जितनी देर तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है कैंडल उतनी देर तक बर्न हो रही है। आफ्टर दैट जो है वो कैंडल भी बुझ गई है और माइस भी उसमें डाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसको फिर जार के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली और पूरा कंप्लीट पैक जार है जो बाहर से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। दैट्स अ रीज़न कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट है और कैंडल को बर्न करने के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो ए और बी तो ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने क्या किया, एक प्लांट्स रख दिया, ठीक है ना। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है और ऑक्सीजन इसमें इवॉल्व हो रही है। ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो सी और डी में ना तो कैंडल टर्न ऑफ हुई और ना ही माउस जो है वो डाई हुआ, मतलब दोनों को क्लियर कट ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पे ये शो होता है कि प्लांट्स कुछ ऐसी गैस इवॉल्व कर रहा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड है और बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बर्निंग मतलब एक प्रकार से रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी शो करता है। कोई चीज़ बर्न होना मतलब वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है एक प्रकार से बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट बर्न होके बर्न होता है, ठीक है, और इसके बाद वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करता है। क्लियर? तो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1954 जूलियस बॉर्न सैचे प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। हाँ, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर इन स्टार्च। प्लांट्स में अब ये क्या फॉर्म होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, क्या फॉर्म होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कहीं ना कहीं ग्लूकोज ही फॉर्म हो रहा है और वो ग्लूकोज मोस्टली स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। पहले भी कई बार बता चुके हैं, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर फूड मटेरियल है और एनिमल सेल में ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर फूड मटेरियल। क्लियर स्टूडेंट? These latter study show that the green substance in plants, chlorophyll, as we know, as located in special bodies. अब ये जब इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ मीन्स ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और वो स्टार्च के फॉर्म पर स्टोर है। दैट्स अ रीज़न कि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे बन रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली स्पेशल ऑर्गन्स पे होता है, प्लांट्स के स्पेशल ऑर्गन्स पे होता है विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट में। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट्स वेयर ग्लूकोज इज मेड। ग्लूकोज बेसिकली कहाँ फॉर्म हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के पूरे पार्ट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होगा। और ग्रीन पार्ट्स क्यों हैं? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और वही एक वहाँ पर ही स्टार्च के मॉलिक्यूल्स और स्टार्च जो है ऑब्जर्व होता है जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। नाउ T.W. एंगरमैन इन 1843 एंड 1909 उन्होंने अब एक और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्रिज्म लिया जो सनलाइट को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। तो सनलाइट को स्प्लिट करने के बाद जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ, स्पेक्ट्रम का कंपोनेंट्स फॉर्म हुए, ठीक है, उनको ग्रीन प्लांट्स में एलिमिनेट किया, ठीक है, लाइक एल्गा वगैरह पर, क्लाइडोफोरा पर, ठीक है, उन सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया पर। तो ये क्या क्लियर हुआ, द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। और ये किस साइट पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है इसको फाइंड आउट किया। तो क्या अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, किन्होंने
T.W. Engelmann ने he observed that bacteria accumulated mainly in regions of blue and red light of the split spectrum. अब एक बात और क्लियर हो गई कि लाइट के जो 7 कलर्स स्प्लिट हो रहे हैं उसमें रेड और ब्लू पर ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है. समझ में आया? तो पहले अभी तक हम लोग क्या रीड करते थे कि सनलाइट में ऑक्सीजन निकल रही, बट सनलाइट की ब्लू और जो रेड लाइट के जो स्पेक्ट्रम है जब उसको प्रिज्म से स्प्लिट किया गया तो जो बैक्टीरिया के ऊपर इज पर्टिकुलर ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट ऑब्जर्व हुई. तो ये ऑब्जर्व हुआ, ग्रीन लाइट जब उसमें फोकस की गई तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड स्पेशली इन ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट पर ही सबसे ज़्यादा होता है. द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड. इट रिसेंबल्ड रफली द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए और बी. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए ब्लू और रेड लाइट ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं क्लोरोफिल के द्वारा. और क्लोरोफिल में पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. ये पिगमेंट्स से पर्टिकुलर ब्लू और रेड लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द सम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. क्लियर? नाउ the middle of the 19th century the key feature of the plant photosynthesis were no. अब इतना एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल, लाइट इज एसेंशियल एंड इट्स फॉर्म CH2O के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है. ठीक है ना? ये तो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है और इसी के डेरिवेटिव्स का कोई कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहा है. इट इज स्टार्च. ठीक है? तो CH2O बेसिकली ग्लूकोज का वो है और यही अल्टीमेटली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? तो CH2O बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है? कार्बोहाइड्रेट. क्लियर? The milestone contribution of the understanding of the photosynthesis was that made by microbiologist Cornelius Wall Neal. माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने और भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. इन्होंने क्या किया? He demonstrated that photosynthesis is essential light dependent reaction. इन्होंने और भी उसको डिटेल में क्लियर किया कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन हो रही हैं. First is light dependent reaction in which hydrogen form the suitable oxidizable compounds and reduced और second है reduction of carbon dioxide to carbohydrate. तो फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और सेकंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. मीन्स और डिटेल क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस कई स्टेज में होने वाली प्रोसेस है. बेसिकली 2 स्टेज में होने वाली प्रोसेस है. फर्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. सेकंड है और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स, ये 2 रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2. इन ग्रीन प्लांट्स H2O is hydrogen donor and oxidized of oxygen. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. तो अब ये क्या है? अब इसको जो ऑक्सीजन मिल रही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन उसको मिल रही है वाटर से. वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ठीक है? हाइड्रोलिसिस के थ्रू
ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है और उसको हाइड्रोजन मिल रहा है, यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है। इसकी जगह यही पॉसिबल है कि हाइड्रोजन से ही वाटर से ही हाइड्रोजन मिल रही है, इसके लिए H2S को लिया। H2S इन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो H2S को यूज़ करते हैं, सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके एक्सपेरिमेंट में ये शो हुआ कि जब उन्होंने H2S लिया तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लिबरेट हो रही थी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जगह पर क्या लिबरेट हो रही थी? सल्फर। तो ये क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से ना होके वाटर से इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज ऑब्वियसली सेकंड स्टेज में यूज हो ही रहा है। अब बचा वाटर, तो वाटर से ही ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। क्यों? ये प्रूफ कब हुआ? जब इसमें सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ किया गया। सल्फर बैक्टीरिया ने H2S को यूज़ किया तो उन्होंने सल्फर गैस लिबरेट की, और यदि वाटर यूज़ होता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो इट इज़ क्लियर दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो this is some facts about photosynthesis. Now, where does photosynthesis takes place? photosynthesis किस जगह पर हो रहा है? मतलब वो उस जगह पे तो ये तो क्लियर हो गया कि ग्रीन पार्ट्स यहाँ पर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट ग्रीन पार्ट्स के भी का और डिटेल किया कि ग्रीन पार्ट्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्योंकि ये भी क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन हो रही हैं। फर्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, सेकंड इज लाइट नॉट डिपेंडेंट रिएक्शन, इट इज डार्क रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की जो हो रही हैं वो ग्रीन पार्ट्स के किस पोर्शन पर हो रही है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स भी डिवाइड है कुछ पोर्शंस पर। क्लियर? तो we would of course answer in a green leaves, or we may add in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. we have, अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को माइंड में रखना है, ठीक है। we are definitely right that photosynthesis does takes place in the green leaves of the plants, but it does so also in other parts of the plant. क्या दूसरे parts में भी होता है? We can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? You would recall from previous unit that the mesophyll cell in the leaves have large number of chloroplast. अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है? लीव्स का स्ट्रक्चर आपने रीड किया हुआ है, तो लीव्स के स्ट्रक्चर पर मेसोफिल होता है। ये अपर लेयर है लीव्स की ये अपर लेयर, ठीक है, और ये इसकी लोअर लेयर, ठीक है, ये लोअर लेयर हो गई। बीच में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और मेसोफिल सेल्स होती हैं। मेसोफिल सेल्स इज लाइक दैट, लीव्स में होती है मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पूरा है। इसमें क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। तो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और यही बेस्ट साइड है फोटोसिंथेसिस की। Have a large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the wall of the mesophyll cell. mesophyll cell की wall पर होता है, where such these get the optimum quantity of incident light, और ये जो है आसानी से इंसिडेंट लाइट को मैक्सिमम नंबर पर ग्रैस्प करते हैं, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो वॉल पर होता है वहाँ पर फ्लैट स्पेस, वो क्या होती है, एक दूसरे के इसमें फ्लैट सरफेस होती है, और उस वॉल पर कुछ पैरेलल फॉर्म पर, कुछ स्टैक्स फॉर्म पर एक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यही स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है, और क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंस लाइट को
जो क्लोरोप्लास्ट पे जो इंसिडेंट लाइट्स है परपेंडिकुलर पड़ती है, जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब होगी और उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लियर कट डिवीजन है। द मेम्ब्रेन सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। द मेम्ब्रेन system is responsible for trapping the light energy and also the synthesis of ATP and NADPH2। तो जो आपने दो रिएक्शंस का अंडरस्टूड किया है, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस में क्या है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम पर ये लाइट रिएक्शन हो रही है और सिंथेसिस के थ्रू ATP और NADPH2 फॉर्म हो रहा है। तो लाइट रिएक्शंस के क्या है, प्रोडक्ट्स। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। कौन, विच वन, ATP और सेकेंड NADPH। ये ATP और NADPH दो प्रोडक्ट हैं जो कि लाइट रिएक्शन पर फॉर्म हो रहा है। ये आगे जाके एनर्जी देने का वर्क करेगा और ये एज ए रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। क्लियर। इन स्ट्रोमा, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पोर्शन पर हो रही है। कहाँ पर हो रही है, ग्रेना पोर्शन। अब एक और क्लोरोप्लास्ट का दो पोर्शन होते हैं, ग्रेना एक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनकॉर्पोरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ शुगर। जो स्ट्रोमा पार्ट है उसमें सिंथेसिस ऑफ शुगर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करके आओगे, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, दैट आई विल एक्सप्लेन इट एंड कंटिन्यू अवर चैप्टर। स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड every points. Thank you student, have a nice